Good morning, students. Today is 26th November, and as you know that the board's exams are approaching, and you are also having your term 1 examinations, which are MCQ based types. तो आपको पता है कि आज अब बहुत जल्दी ही आपके बोर्ड एग्जाम शुरू हो चुके हैं और आप MCQ टाइप क्वेश्चंस के लिए टर्म 1 देने जा रहे हैं। तो हम एक वीडियो बना रहे हैं इसके सिलसिले में, जो आपको टुगेदर विद के सैम्पल पेपर्स को सॉल्यूशंस समझाने की कोशिश करेगी कि हाउ यू हैव टू गो विद द सॉल्यूशंस, हाउ you have to solve in exams. So I'm sharing with you the PDF of Together with Sample Paper. As you can see, I have shared my screen. Screen share करिए मैंने आपको, और term 1 class 10th science. As you can see, this is a syllabus. And this is the first question paper, which is given here. So let us try. Firstly, they have given the chapter at a glance. And the number 1 chapter in the chemistry is changes around us. This is the equations. Physical changes, chemical changes. This is the introduction, that those changes in which no new substance are formed are physical, and those changes in which new substance are formed are called chemical. So chemical reactions are generally seen in the terms of the chemical reactions. This you know, कोई भी chemical change होगा तो chemical reaction होगा, and we thereby makes chemical equations. Okay, we thereby makes chemical equations to show this law, which is the constant proportions, that reactants and the products formed. Left side पे equation में there are reactants, and on the right side there is product. So these two should be balanced. As you can see in the figure, they are not balanced. Balanced नहीं है तो equation possible नहीं है. Equation is false. Now we will go to what is given in the next thing. Writing a chemical equation. After the main thing कि हमें बैलेंस करनी है, इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, अब हम ये देखेंगे कि हम कैसे लिखते हैं केमिकल इक्वेशन. राइट द LHS ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट द रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. तो मैंने आपको जैसे बताया यहाँ पर K and Cl molecules are joining to form KCl. So K potassium and separately the chlorine are called the reactants. तो रिएक्टेंट्स को हमें LHS साइड पे लिखना है, प्रोडक्ट्स को हमें RHS साइड पे लिखना है, और फॉर्मूला और उनके एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के सिंबल्स के साथ. राइट S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड एंड G फॉर गैसेस. दैट मीन्स आपको आपके रिएक्टेंट्स की स्टेट्स ऑफ मैटर भी मेंशन करनी है ब्रैकेट में. कंडीशंस यानी इन प्रेजेंस ऑफ, आप इक्वेशंस के ऊपर जो प्रोडक्ट बनाते हो उसमें आपको इन प्रेजेंस ऑफ भी शो करना होता है, तो वो आपको शो करना है. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं. Na+H2O gives NaOH and H2. एंड देन आपको जो स्टेप्स देखने हैं आफ्टर फ्रेमिंग द इक्वेशन, एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड. आप यहाँ चेक करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम को आप इस इक्वेशन में चेक करो, यहाँ सोडियम का सिंगल एटम है, यहाँ भी सोडियम का सिंगल एटम, यहाँ हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं. वन हाइड्रोजन इज विद OH, another hydrogen is as a gas, H2. So hydrogen is not balanced. So therefore, 2 hydrogen atoms on LH3 and 3 on RHS. This you have observed. Up, what will happen? You have to multiply H2O in the LHS side to balance it by 2, and NaOH also by 2. NaOH को भी आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, H2O को भी आप 2 से, तो यहाँ आप 2 लगा देंगे आगे, यहाँ पे भी आप 2 लगा देंगे आगे. And now what will equation become? आप दोबारा इक्वेशन लिखेंगे Na+2H2O 2 NaOH plus H2. अब बैलेंस करेंगे सोडियम एटम्स को एंड मल्टीप्लाई Na/2. अब सोडियम भी यहाँ पर 2 हो गए, तो यहाँ पर भी हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी उसे बैलेंस करना पड़ेगा.
क्योंकि आप जैसे भी डिसऑर्डर करोगे, आप किसी एक एलिमेंट को नंबर लगाओगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा एलिमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको ये चेक करते जाना है कि आपने 2 अगर H2O के आगे लगाया था और उधर भी NaOH के आगे रिएक्ट प्रोडक्ट्स में लगाया था, यहाँ पर जैसे मैं एरो से दिखा रही हूँ येलो कलर के, वैसे ही यहाँ पर भी आपको जो पहला वाला सोडियम है उसके आगे भी आपको 2 लगाना पड़ेगा फॉर बैलेंसिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ finally we have got this equation, 2Na plus 2H2O gives 2NaOH plus H2. So this is about the clear balancing of the equations. Now we'll move to next thing, types of chemical reactions. This is very fast, quick, rapid revision of what are the types of reactions. Combination reaction आप देख रहे हो, कई सारे यहाँ पे example दे रखे हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। These are all examples of combination reaction. That means 2 elements इसमें combine होंगे और एक नया product बनेगा। Displacement reactions, इसमें आप देख रहे हो कि more reactive elements और less reactive elements को displace करते हैं। यहाँ जिंक है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पहली इक्वेशन जो दे रखी है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की दी है कि जिंक ने HCl में से H को, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, जिंक ने उसकी जगह ली है एंड एक सॉल्ट बनाया है ZnCl2 प्लस H2। ऐसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट में आप देखोगे अगर 2 कंपाउंड इस तरह से अपनी एक्सचेंज करते हैं आयंस को और नया कंपाउंड बनता है तो वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ये CBSE 2020 में पूछा भी गया था कि FeS आयरन सल्फाइड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो FeSO4 सॉल्ट बनता है एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है। सो आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस आप 9th में भी वन एक्टिविटी यू हैव डन। तो जब आप हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जब बनती है, जब आप आयरन सल्फाइड को किसी भी एसिड के साथ डाइल्यूट HCl, यहाँ पर भी दिख रहा है आपको H2SO4 के साथ डाल रहे हो तो एक स्मेल आती है। सो विच इज दैट स्मेल? कैसी स्मेल आती है? इस H2S की रॉटनाइट की स्मेल आती है। दैट मीन्स ये बैड स्मेल, फाउल स्मेल इसमें आती है। नाउ कमिंग टू AgNO3, KBr, ये सब भी डबल डिस्प्लेसमेंट एग्जांपल्स हैं रिएक्शंस के। अब अगर आप आते हैं पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे, नीचे थोड़ा सा डायग्राम से, कुछ बच्चों को डायग्राम से ज्यादा समझ में आता है, उसके लिए डायग्राम से दिखा रखा है कि किस तरीके से रिएक्शंस होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। Now coming to next type of reactions, decomposition reactions. तो आपको decomposition reactions की भी 3 कैटेगरीज हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन, दैट मीन्स हीट से आप किसी चीज को ब्रेक करते हो, CaCO3 हीट के प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा है, CEO CO2। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोजिशन, इलेक्ट्रॉनिक डिकम्पोजिशन, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी आप देते हो सोल्यूशन में किसी सब्सटेंस के एंड वो ब्रेक हो जाता है, उसके बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, H2O के अंदर आप बिजली देते हैं, स्पार्क देते हैं तो इट विल 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट। एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस दो, 2 इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन के बाद एक और डिकम्पोजिशन है, वी हैव स्टडी थर्मल, जिसमें हीट की वजह से हो रहा है, CaCO3 उसका एग्जाम्पल है, ZnCO3। देखो एक ऑक्साइड बन रही है, ऑक्सीजन से रिएक्शन दिखा है, यहाँ पर कंपाउंड है CO, कैल्शियम ऑक्साइड, CO2, तो ये CaCO3 में से ही निकली है। ZnCO3 को ब्रेक किया है तो ZnO एंड CO2 निकली है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है। एंड इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन में भी H2O ब्रेक हुआ है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पर मिला है, 2 H2O इज ब्रोकन। नाउ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, दिस इज वेरी कॉमन, सनलाइट में ये होता है। एंड AgBr, 2 AgBr, 2 AgCl, these are the salts like what is common? Silver is common. Ag is a symbol of silver. Silver halides, that means halogen groups इसके साथ जुड़े हुए हैं, AgCl, AgBr, AgS, I, AgI। सनलाइट में इनमें ये मेटल डिसोसिएट हो जाता है और हेलाइड ग्रुप डिसोसिएट, अलग अलग हो जाता है, डिसोसिएट। 2 Ag plus Cl, ये यूज होता है जैसे कि आप कुछ भी फोटोग्राफी करते हैं तो उसमें नेगेटिव्स जो बनते हैं, फोटो की जो इमेज होती है, लाइट एंड डार्क फोटोग्राफी, उसमें
इसकी फिल्म होती है जो आपके कैमरा की रोल होती है उसके ऊपर, एंड जब लाइट उस पर फॉल करती है तो वहां पर पॉजिटिव मीन्स वहां पर नेगेटिव बन जाता है उसमें इमेज का, एंड देन वो उसे डेवलप किया जाता है, तो वो यही रिएक्शन होता है AgCl का. नाउ कमिंग टू last type of reactions, oxidation reduction reactions. Oxidation reaction में as you can see 3 important points are written: addition of oxygen electronegative element, and reduction is the addition of hydrogen electropositive element, removal of oxygen electronegative element. Means first two definition addition of oxygen और hydrogen की terms में है, and which are reverse of each other. पहले 2 पॉइंट ऑक्सीडेशन के भी आप देखोगे तो रिवर्स है, ऑक्सीजन की तो एडिशन को और हाइड्रोजन की रिमूवल को ऑक्सीडेशन कहते हैं. रिडक्शन में आप देखोगे तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन कहते हैं. नाउ कमिंग टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. इन द टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं तो वो मेटल या वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता है, जिसमें जुड़ते हैं तो वो रिड्यूस होता है. आई होप आप क्लियर हो गया हो. नाउ कमिंग टू the equations. These equations are showing you that first equation example which is given 4Na of oxidation and O2. Na में simply O2 जुड़ रहा है, सोडियम ऑक्साइड बन रही है, एंड यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन में Mg जुड़ रहा है एंड 2Mg वो रिलीज हो रहा है. नाउ कमिंग टू आप टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में, तो लास्ट वाली इक्वेशन आपको इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में दिखा रही है कि Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव हुआ है. 2 पॉजिटिव क्या है? चार्ज स्पीशीज है, इसके इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें पहले से ही लैकिंग है, एंड इसने एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो अब ये Fe3 पॉजिटिव हो गया है और एक इलेक्ट्रॉन बाहर रिलीज हुआ है. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब आप देखोगे तो Fe3 पॉजिटिव जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वापस से Fe2 पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पे इसका रिवर्स है. एंड सोडियम जब हाइड्रोजन से जुड़ता है, NaH बनाता है सोडियम हैलाइड, तो 2NaH बनाता है. तो दीज आर रिडक्शन, जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो, जिसमें हाइड्रोजन रिमूव हो, हाइड्रोजन ऐड हो, सॉरी, and because 2Na plus H2 I have discussed, and oxygen removal. Now coming to the next, we will move to the what is given in the next in this sample paper. रिडॉक्स. बस आपने दोनों अलग अलग समझे, अब एक आपने रिडॉक्स समझना है. ये रिडॉक्स रिएक्शन में दोनों चीजें साथ हो रही होती हैं, क्योंकि इसके अंदर जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनमें से एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट होता है. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैन ऐड ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ये, जो कि आसानी से ऑक्सीजन ऐड कर सकता है. रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन को ऐड कर सकता है और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है. एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कैन रिमूव हाइड्रोजन्स और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या तो ऑक्सीजन ऐड करेगा या तो हाइड्रोजन्स को रिमूव करेगा, इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बन जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव. इलेक्ट्रोनेगेटिव होते कौन है? इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादातर नॉन मेटल्स होते, नीचे दिया हुआ है नॉन मेटल CuO, MnO2. These can gain electrons, and reducing agents ज्यादातर easily जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं. आपने सुना भी होगा कि metals are electropositive in nature, means they generally आप देखोगे कि उनके ऊपर पॉजिटिव सिंबल्स होंगे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया हुआ. अभी हमने एग्जांपल दिया था पीछे Fe+3, Fe+2. तो यहाँ पर भी मेटल्स जो होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह काम करते हैं. नाउ कमिंग टू, यहाँ पे कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के नाम दिए हुए हैं, दे कैन कम इन MCQs, एंड इधर भी कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स के नाम दिए हुए हैं, तो यू शुड रिमेंबर देम. इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. नाउ कमिंग टू, वी विल मूव फर्दर. इफेक्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन लास्ट टॉपिक है, बहुत ही स्मॉल, कि आप देखते रहते हो डेली लाइफ में आपके केमिकल रिएक्शंस में आप जनरली देखोगे कि कोरोजन होता है. बहुत सारे मेटल ऐसे होते हैं, और सबसे कॉमन एग्जांपल है जंग लगती है लोहे में, एंड आयरन गेट रस्टेड, एंड दिस इज नोन एज कोरोजन. Process by which metals are eaten away by the action of air, water or the substances or redox reactions. Rust का एग्जाम्पल दिया हुआ है जंग.
एंड रस्ट का फॉर्मूला भी दिया हुआ है Fe2O3 प्लस डॉट 10 XH2। X में यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो दिस इज व्हाट वाटर से रिएक्ट करता है, वाटर जो मॉइस्चर में है वो रिएक्ट करता है तो किससे, आयरन से, आयरन ऑक्साइड बनता है, ऑक्सीजन भी रिएक्ट कर रही है। सिल्वर जो आप देखोगे कुछ देर बाद सिल्वर की चीजें ब्लैकिश होने लगती हैं, तो वो भी क्या है, AgNS सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, तो दैट गिव्स इट्स ब्लैक कलर। कॉपर ग्रीन हो जाता है एंड उसका कॉपर का कॉपर भी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है। प्रिवेंशन क्या है, हम चीजों को, अगर आयरन की चीजों को प्रिवेंट करना चाहते हैं कोरोजन से, तो व्हाट इज द प्रिवेंशन, प्रिवेंशन जस्ट पेंटिंग कर दो, ऑयलिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो, गैल्वेनाइजेशन मीन जिंक की प्लेटिंग कर दो उनके ऊपर। कंडीशन ऑफ कोरोजन, प्रेजेंस ऑफ वाटर, ऑक्सीजन एंड एसिड्स, H positive, presence impurities, reactive metals. Now coming to rancidity, spoilage of food by oxidation, food smell and taste changes. मीन्स रेंसिडिटी भी एक ऐसी चीज होती है, अभी तो हमने कोरोजन में बात करी मेटल्स को ऑक्सीजन से रिएक्ट करना और उसका खराब होना, पर रेंसिडिटी क्या है, फूड, फूड अगर कहीं पे खाली हमने ऐसे ही फ्रिज में नहीं रखा, बाहर छोड़ दिया, और वो फूड में सब हमारे न्यूट्रिएंट्स तो हैं पर उसमें फैट्स भी हैं, तो फैट्स में वो डिकम्पोज होने लगेंगे एंड दैट प्रोसेस नोन एज रेंसिडिटी। एंड इसका प्रिवेंशन क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें ऐड करते हैं चीजों में, चिप्स के, स्नैक्स के पैक्स में, जिससे ये ना हो, ये प्रिवेंशन है। जैसे आप कोई भी वेफर्स का पैकेट खरीदोगे, आप कोई भी ऐसा पैक्ड फूड खरीदोगे, वो फूला रहता है, that pack is means filled with air called as nitrogen, so इसीलिए होता है बिकॉज ताकि वो खराब ना हो, एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करें, वो खराब ना हो। एंड एयर टाइट कंटेनर्स में भी हम खाने को रख सकते हैं, एंड फ्रिज में मिल्क बटर और वेजिटेबल तो उन्हें फ्रिज में रखेंगे। दीज आर द प्रिवेंशन एंड antioxidants BHA, BHT are added to butter. बटर में भी BHA और BHT नाम के एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करे जाते हैं। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट। So there are multiple choice questions which are given over here and you have to identify. Okay, so first question is 2HNO3 plus CaOH whole twice giving you CaNO3 whole twice and 2H2. So this is an example of what? You have to identify this कि ये किसका एग्जाम्पल है। तो आप देख रहे हो कि आयंस, दोनों कंपाउंड्स ने आयंस के ग्रुप एक्सचेंज किए, तो इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड इट इज अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि दोनों ग्रुप्स एक्सचेंज हुए हैं, तो इट इज सेकेंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑल्सो इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बिकॉज एक तो बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस है, और दिस इज what, this is your acid and they are making a salt and they are making water. So this is two types of reactions are there, double displacement and न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो आंसर क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन जनरल है कि आपको ऑप्शंस में भी नेक्स्ट में चूज करना पड़ेगा सेट ऑफ ऑप्शंस, सिर्फ एक एमसीक्यू एक आंसर हो जरूरी नहीं है, तो इसमें बी आंसर है जिसमें दो चीजें करेक्ट हैं और दोनों का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, सेकेंड एंड थर्ड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज ब्रॉट इन द गैस जार ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो बर्न तो कर रहे हो मैग्नीशियम रिबन को, बट कार्बन डाइऑक्साइड उसमें है उस जार में, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या चीज करेक्ट है, इट कीप्स ऑन बर्निंग, इट गेट्स एक्सटिंग्विश्ड, yeah, although CO2 is not supporter of combustion, but burning of magnesium breaks CO2 into carbon and oxygen. Oxygen helps in burning. Yeah, carbon dioxide is a supporter of combustion. So what will be the answer? So fourth तो कभी हो नहीं सकता, कार्बन डाइऑक्साइड सपोर्टर नहीं होगी combustion की, and so what will be the answer? I want you to think of the answer. Second is will be true because
सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड में पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एज एक्सटिंग्विशर भी काम आती है। तो सेकंड, एंड इट कीप्स ऑन बर्निंग, थोड़ी देर के लिए, पहले तो वो जलेगा ही। तो maybe this is the A will be the answer. Now we'll come to the next question. What is observed when a solution of potassium iodide is added to silver nitrate solution? Potassium iodide यानी Ki, और किसको ऐड कर रहे हैं? सिल्वर नाइट्रेट को ऐड कर रहे हैं, AgNO3 को। तो क्या होगा? What will be there? No reaction will take place. White precipitate of silver iodide is formed. Yellow precipitate of AgI is formed. What will be there? So this is the question. So I want you to answer the question. So out of four, what will be the correct answer? नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सोल्यूशन बन जाती है, एंड उससे प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है। व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर आयोडाइड इज ऑब्टेन। दिस इज द आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Identify X, Y, Z in the following balanced equation. So X PbNO32 हीट होता है Y PbO and 2NO2 plus O2। ये आपके एनसीईआरटी का ही इक्वेशन है। तो लेड नाइट्रेट को हीट करने वाला डिकम्पोजिशन रिएक्शन। So tell me which number of molecules of lead nitrate is reacting to the is heated to form the lead oxide and NO2. What will be the correct number of molecules? What will you give in the X, Y, and Z? So 2 molecules here in the X. You remember कि एनसीईआरटी में आपको यहाँ पर X2 दिया हुआ, 2 PbNO32 हीट करते हैं तो यहाँ पर भी 2 PbO बनता है and 4 NO2 बनते हैं, and you get 1 oxygen only. So X will be 2 and Y will be 2 and 2, 2 and 4, and Z will be 4. So answer option 2 will be correct. B will be correct. आई होप आपको ये क्लियर होएगा। और इससे आप ये समझो कि आपको एनसीईआरटी की सारी इक्वेशंस याद होनी चाहिए। इफ स्टूडेंट्स टेक वेरी वी कैन से neglect the NCERT equations, so I don't think so कि it's a wise decision, क्योंकि NCERT को अगर आपने equations याद नहीं करी, वो ही आपका बेस है। You have to learn, that is your learning outcome. This need to be done, okay? ये होना जरूरी है if you want to get the learning of this chapter. आप सिर्फ एग्जाम में नंबर लाने के लिए ही पेपर नहीं दे रहे हो, आप 10th की साइंस को समझने के लिए पढ़ रहे हैं। तो उसी बच्चे को समझ में आएगा जिसने अपना सिलेबस में क्या है वो पूरा जाना है, और उसके लिए आपकी बुक जो है साइंस की टेक्स्ट बुक, वो बहुत जरूरी है लर्न करनी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रेसिपिटेशन एज वेल एज डबल डिस्प्लेसमेंट। दोनों तरह के रिएक्शन है। यानी प्रेसिपिटेशन क्या होता है कि जब कोई सॉल्ट आकर टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठता है, सो द network problem was, network issue is there, so the screen I'm sharing again. So we were solving the question sample papers. So we were on this question, that is there are a large number of questions in the sample paper.
एंड आपको प्रिपरेशन में मैं बता रही थी कि एनसीईआरटी को आपको बहुत अच्छे से याद करना है। एंड अगर आप उसको करेंगे तो यू विल गेट द लर्निंग आउट ऑफ दैट बुक एंड यू विल हैव अ कॉन्फिडेंस फॉर द पेपर। ठीक है, क्या आपने पढ़ा हुआ है, आपको आता है।